Hello students, I am your English teacher and today we are going to study chapter 2nd of your English literature book, that is A Christmas Carol written by Charles Dickens. First of all, what is carol? Carols are devotional songs sung at Christmas. There is a noticeable element of cheerfulness in carols. Means carol is a song or hymn traditionally sung at Christmas. This is the story of Ebenezer Scrooge, a lonely, unhappy man who did not like Christmas. One Christmas, however, his life changed. So, Ebenezer Scrooge is the main character in this story. Actually, this is a ghost story. And being a ghost story, it recounts the story of Ebenezer Scrooge, an elderly miser who is visited by a ghost. After ghost's visit, Scrooge is transformed into a kinder, gentler man. So, let's start. Although Scrooge was a wealthy man, he was a miser. His favorite hobby was counting money, his own money. He never married because he did not like the idea of supporting a wife. Bringing up children was a waste of money to him. He had no friends because he spent very little, and that very little he spent on himself. So, here in this paragraph, we come to know that Scrooge was a wealthy man, but he was a miser. हालांकि स्क्रूज एक अमीर आदमी था, लेकिन वह कंजूस था. उसका पसंदीदा शौक था पैसे गिनना, उसका खुद का पैसा. उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसे पत्नी का खर्च उठाने का विचार पसंद नहीं था. बच्चे पालना उसके लिए पैसे बर्बाद करने जैसा था. उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वो बहुत कम खर्च करता था, और वो इतना कम खर्च करता था और वो केवल खुद पे खर्च करता था. Scrooge was a hard-working man. Christmas was just around the corner and most people were in happy mood except Scrooge. Scrooge एक मेहनती व्यक्ति था. जैसा कि क्रिसमस आने वाला था, ये क्रिसमस का टाइम था, इसलिए सारे लोग बहुत खुश थे सिर्फ स्क्रूज को छोड़ के. यानी कि स्क्रूज को क्रिसमस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Merry Christmas! What rubbish! He said to himself. What's Christmas? It is just a time to pay bills, to find you are a year older and not an hour richer. He muttered to himself. Merry Christmas! क्या बकवास है. स्क्रूज खुद से कहता है. क्रिसमस क्या है? यह बिल भरने का एक समय है, यह जानकर कि आपकी उम्र एक साल और ज्यादा हो गई, यानी कि आप एक साल और बूढ़े हो गए और एक साल के भी अमीर नहीं हुए. उसने खुद से कहा. Scrooge just could not understand why people closed their shops and stayed at home to celebrate Christmas when there was money to be made. स्क्रूज को समझ नहीं आ रहा था कि लोग अपनी दुकानें बंद करके घर में क्यों बैठ जाते हैं. लोग अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं और घर में क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों करते हैं, जबकि उन्हें और पैसे कमाने चाहिए. Business is so good around Christmas and these silly people close their shops. He grumbled and grumbled. स्क्रूज खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि क्रिसमस के समय व्यापार और अच्छा होता है और ये मूर्ख लोग, यानी कि ये लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी दुकानों को बंद करके घर पे बैठ जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने. So while others were busy preparing for Christmas, old Scrooge would spend his days going over the sums of money that others owed him. इसलिए जब बाकी के लोग क्रिसमस की तैयारी में व्यस्त होते थे तो बूढ़ा स्क्रूज क्या करता था, तो अपना पूरा दिन, अपना पूरा टाइम अपने पैसे को, यानी कि दूसरों के पास बकाया अपने पैसे को गिनने में लगा देता था. He had been doing this for as long as he could remember. और ऐसा वो बहुत पहले से, यानी कि जब से उसको याद है वो ऐसा ही करते आ रहा था. वो कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं था. उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था और वो था अपना बिजनेस, यानी कि पैसे कमाना. As usual, his clerk Cratchit would make a request to be let off earlier on Christmas Eve. This Scrooge granted most unwillingly. और हमेशा की तरह Cratchit का क्लर्क आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है क्रिसमस की वजह से जल्दी छुट्टी लेने के लिए, और स्क्रूज वो न चाहते हुए अनमने मन से उसको परमिशन देता है. But this Christmas for Scrooge was to be different from the others. लेकिन ये वाली क्रिसमस, यानी ये क्रिसमस जो है वो स्क्रूज के लिए बाकी सारे क्रिसमस से अलग होने वाली थी.
As the old moneylender fell asleep that night, the spirit of Christmas visited him. So, who is old moneylender here? The old moneylender refers to Scrooge. जैसे ही स्क्रूज रात में सोता है, क्रिसमस का स्पिरिट उसके पास आता है. एन ओल्ड मैन इन घोस्टी वाइट अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, स्क्रूज कम विथ मी, आई विल शो यू योर फ्यूचर. जैसे स्क्रूज रात में सोता है, क्रिसमस का स्पिरिट उसके पास आता है. सो व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ क्रिसमस स्पिरिट? तो क्रिसमस का जो स्पिरिट है, जो भूत है, वो कैसा था? तो वो बुढ़ा था और वो वाइट कलर के क्लोथ में था. और वो आके स्क्रूज से कहता है कि स्क्रूज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाता हूं. स्क्रूज गोट अप एंड फॉलोड द ओल्ड मैन एंड दे वेंट ऑन अ जर्नी एज इफ ट्रेवलिंग थ्रू द क्लाउड्स. स्क्रूज जगता है और वो उस स्पिरिट के पीछे पीछे चलता है और दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो बादलों में से ट्रेवल कर रहे हों. सून दे कम टू अ मार्सी लैंड थिक विथ मिस्ट. और जल्दी ही वो एक मार्सी लैंड यानी कि एक दलदल भूमि में आते हैं जिसके चारों तरफ मिस्ट यानी कि धुंध था, यानी चीजें क्लियर नहीं थी. वाचिंग क्लोजली स्क्रूज कुड मेक आउट मेनी पीपल, ऑल ऑफ whom he recognized as having been dead for a long time. और नजदीक से देखते हुए स्क्रूज ध्यान से देखता है और स्क्रूज क्या देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो पहचानता है जो कि बहुत पहले मर चुके थे. Weighed down by heavy chains, they were crying for help. और वो लोग जो थे मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे. यानी कि जो मरे हुए लोग थे वो मोटी जंजीरों में बंधे हुए थे और हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे. There you are, Scrooge, the spirit of Christmas began. They were once like you, hard-hearted and merciless. तभी स्पिरिट क्या कहता है कि स्क्रूज ये भी तुम्हारी ही तरह थे, ये भी एक टाइम पे तुम्हारी ही तरह कठोर हृदय के थे, इनके अंदर भी दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी. They too enjoyed counting their money to the last penny. इन्हें भी अपने पैसे इकट्ठे करना, काउंट करना बड़ा पसंद था. जैसे तुम्हें अपने पैसे काउंट करना अच्छा लगता है, इन्होंने भी अपने एक एक पैसे अपने लाइफ टाइम में एक एक पैसे काउंट किए थे, इकट्ठे किए थे. बट वेयर आर दे नाउ? कैन देयर मनी हेल्प देम? गिव स्क्रूज कीप, ब्लेस्ड आर दे हु गिव. फिर स्पिरिट कहता है कि लेकिन अभी ये कहाँ है? क्या वो पैसा, क्या उनके इकट्ठे किए हुए वो पैसे इनकी मदद कर सकते हैं? इसलिए गिव स्क्रूज कीप, स्क्रूज तुम भी देना सीखो. ब्लेस्ड आर दे हु गिव, यानी कि वे लोग धन्य होते हैं जो देते हैं, जो दूसरों को देते हैं. द ओल्ड माइजर कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट सीन. और ओल्ड माइजर यानी स्क्रूज को विश्वास नहीं हो रहा था, यानी जो चीज़ें वो देख रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो सरप्राइज था. लेट्स गो अ लिटिल फर्दर एंड परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेड. और जैसे ही स्क्रूज को वो स्पिरिट देखता है, स्क्रूज सरप्राइज था, तो स्पिरिट कहता है कि चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, तब शायद तुम्हें और क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी. नॉट फार अवे दे कम टू अ ग्रेवयार्ड. देयर वेर मेनी tombstones there. One of them was a newly dug one with the word Scrooge written on it. और जब वो थोड़ी दूर चलते हैं तो थोड़ी ही दूरी पे वो कहाँ जाते हैं? तो एक कब्रिस्तान में, जहाँ पे बहुत सारे कब्र होते हैं और उनमें से तो एक कब्र बहुत नया ही खुदा हुआ होता है अभी, और उस पर किसका नाम लिखा होता है? तो उस पर स्क्रूज के नाम लिखे हुए होते हैं. यानी कि वो ग्रेव जो था, वो कब्र जो था, वो किसका था? तो वो स्क्रूज का था. You are looking at your own grave, Scrooge. और स्पिरिट कहता है कि ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा खुद का कब्र है. The spirit of Christmas told the old miser, you see there are no flowers because during your lifetime you had no friends. Soon your grave will be in ruins and you will join those in that mercy land. और स्पिरिट कहता है कि देखो तुम्हारी कब्र पे एक भी फूल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अपने जीवन काल में, तुमने अपने लाइफ टाइम में एक भी दोस्त नहीं बनाए, और जल्दी ही तुम्हारा जो कब्र है वो क्या हो जाएगा? तो वो नष्ट हो जाएगा, यानी वो टूट जाएगा और तुम फिर से कहाँ चले जाओगे? तो उसी दलदल भूमि में चले जाओगे. जो अभी तुम देख के आए हो उसी दलदल भूमि में तुम चले जाओगे. स्पिरिट स्क्रूज से कहता है, नो, ओह नो, आई बेग यू, स्क्रूज क्राइड. ही वॉज नाउ शेकिंग ऑल ओवर. और स्क्रूज क्या कहता है कि नहीं, अरे नहीं, प्लीज,
यानी कि स्क्रूज जो है वो स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता है और वो कांप रहा होता है. जस्ट गिव मी अ चांस, वन मोर चांस एंड आई विल रिपेंट, द ओल्ड माइजर सेड एज ही shook द घोस्टली ओल्ड मैन्स wrinkled हैंड. और स्क्रूज कहता है कि मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मुझे एक चांस दे दो ताकि मैं अपनी भूल को सुधार सकूं, मैं अपनी भूल का पश्चाताप कर सकूं. प्लीज मुझे एक चांस दे दो. और वो क्या करता है, उस बूढ़े भूत यानी कि उस भूत के बूढ़े यानी कि झुर्री वाले रिंकल्ड यानी कि झुर्री वाले हाथ को पकड़ के हिला के उसे कहता है कि प्लीज गिव मी अ चांस. So here up to now we come to know how Scrooge realized his mistakes.